27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। Hello everyone. I hope all members of our GNPS family are safe and healthy. Today, on the 6th International Yoga Day, we have made a small effort to connect to our students through this documentary. I know that our students have been working on their academic skills regularly, but then it is equally important to take care of their physical and spiritual health also. At this time of pandemic, when children cannot move out of their homes, yoga is the best way to take care of their mind, body and soul. Yoga enhances children's physical flexibility, refines their balance and coordination, and develops their focus and concentration too. It also boosts their self-esteem and confidence, and hence strengthens their mind-body connection. Our children live in a hurry-up world of busy parents, school pressures, incessant lessons, video games, malls, and competitive sports. We usually don't think of these influences as stressful for kids, but often they are. Yoga can help counter these pressures, and children can navigate through life's challenges with a little more ease. I appreciate and thank all students, parents, and school staff who have contributed in making this documentary successful. We hope to stay connected for the betterment of our students. Stay safe and
में योग का आरंभ 5000 साल से भी पहले हुआ था और आज ये आधुनिक जिम्स, स्कूलों और पार्कों में भी यानी हर कहीं नजर आने लगा है। योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक संपूर्ण माध्यम बन गया है। योग लाखों लोगों को स्वास्थ्य, संतुलन, सामंजस्य और आंतरिक शांति और खुशी हासिल करने में मदद करता है। योग धार्मिक, भौगोलिक, जातीय और नस्ली सरहदों से आगे बढ़कर हम सबको ज्यादा सेहतमंद, शांत और सामंजस्यपूर्ण इंसान बनने में सहायता करता है, जिससे हमारा ये ग्रह ज्यादा टिकाऊ और शांतिमय बन सकेगा। लेकिन योग आखिर है क्या और इसे कैसे अमल में लाया जा सकता है? क्या योग वास्तव में हमें खुद से और प्रकृति से सामंजस्य बनाने में मदद कर सकता है? तो आइए चलें योग से जुड़ी इस यात्रा पर। हर साल फरवरी में पूरी दुनिया से हजारों लोग हिमालय के आंचल में बसे भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक ऋषिकेश आते हैं ताकि योग का अनुभव कर सकें, उसे सीख सकें और उसे एक दूसरे से बांट सकें। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल में 50 से भी अधिक देशों से योगी आते हैं और योग गुरुओं के सानिध्य में वर्कशॉप, मेडिटेशन और कक्षाओं में हिस्सा लेने के साथ साथ उनसे विचार विमर्श भी करते हैं। आज दुनिया में ये कहीं भी योग गुरुओं का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला सम्मेलन है। जब मैं भारत आई तो मैंने सीखा कि एक सामंजस्य के तौर पर योग का मतलब क्या होता है, और जल्दी ही भारत में मेरा ये योग केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसके साथ दिमाग, विचार, भाव और आत्मा भी जुड़ गई। भारत में ही मुझे असली योग का दर्शन हुआ, यानी ईश्वर से हमारा मेल। मैं वाहे गुरु तन वाहे गुरु। Stay healthy with yoga. Thank you. Yoga is the way of feeling calm. Adopt yoga a way of life for holistic health. Yoga is the strength of body, mind and soul. Thank you. Yoga helps to improve health and happiness. Is most important our health. Yoga enhances immunity, so practice yoga and stay safe. Yoga good for health. Doing yoga stay healthy. Increases flexibility, weight reduction, maintaining a balanced metabolism. रोज योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है. Yoga is one of the best way to stay healthy and fit. So make yoga part of your life. योगा जीवन का सार, इससे बिना सब बेकार. Yoga relaxes our mind, body and soul. Yoga day. Fit muscles, healthy and fit. Yoga is the flexibility of our body. Yoga keeps us healthy and fit. स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे पूरे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखता है। Yoga is the way to keep us fit, active and positive throughout the day. Yoga helps to keep our mind in harmony. मन की शांति केवल योग से मिलती है। हमें रोज योगा करना चाहिए। Yoga keeps us mentally and physically strong. Yoga improves immunity. योगा करने से हम स्वस्थ रहते हैं, इसलिए हमें रोज योगा करना चाहिए। Yoga is good for our health and brain. Yoga is addition of energy, strength and beauty to body, mind and soul. Yoga is good for health
and peace of mind. Yoga for a peace of mind and a better body. Yoga is good for health. Yoga makes my muscles strong. Yoga makes powerful. योगा मन को शांत करने वाला एक अभ्यास है. Yoga is an Asian art that connects our mind and body to the nature. Stay healthy, stay fit. Yoga is a key for healthy life. It helps to improve our immunity system and concentration level. Yoga, along with breathing and meditation, keeps our body, mind and soul fit. Do yoga every day keeps the doctor away. Yoga improves our immunity. योग पूरे भारत में ही काफी जाना पहचाना था और इसका जिक्र फिर वैदिक ग्रंथों में मिलने लगा, विशेषकर उपनिषद में और उस दौर की बौद्ध और जैन शिक्षाओं में भी। उपनिषदों में 4 तरह की योग पद्धतियां हैं। मंत्र यानी पवित्र ध्वनियों को बार बार उच्चारण करना, परम शक्ति से संपर्क जिसे लय या भक्ति संबंध कहते हैं, हठ या आंतरिक ऊर्जा को चैनलाइज करना और राजयोग, इसे ही ध्यान या अष्टांग योग भी कहा गया। और सबसे अंत में होता है अंतिम या संपूर्ण अवस्था, जिसे आनंदमय कोश कहा जाता है। प्राण हर जीव की जीवनी शक्ति की प्रमुख ऊर्जा होती है, जो इन सभी सतहों के बीच घूमती रहती है और उन्हें आपस में जोड़े रहती है। पतंजलि ने योगियों के लिए एक प्रणाली सुझाई, जिसे अष्टांग या 8 अंगों वाला मार्ग कहा जाता है। पहला अंग है यम। ये योगी को निर्देशित करता है कि उसे दुनिया में क्या नहीं करना है। दूसरा अंग है नियम, या योगी को अपने जीवन में क्या करना और क्या सोचना चाहिए। तीसरा अंग है आसन, या प्राणिक ऊर्जा को संचालित करने और मस्तिष्क को शांत करने के लिए। आज अधिकतर लोग इसे ही योग समझते हैं। चौथा अंग है प्राणायाम, या 5 कोशों के माध्यम से प्राण को सांस के जरिए प्रवाहित करना। प्राण पूरे ब्रह्मांड की जीवनी शक्ति है और ये पद्धति ठीक ठाक रहने और संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बाद बारी आती है प्रत्याहार, यानी आत्मनियंत्रण अथवा ज्ञानेंद्रियों को पीछे खींचना, संसार से विमुख और संतुलित रहना। अंतिम 3 अंगों को अंतरंग कहा जाता है, क्योंकि ये योग के आंतरिक अंग हैं। ये मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। धारणा मस्तिष्क को एक ही विचार या वस्तु पर केंद्रित करने की पद्धति है। ये आपकी सांस, कोई चीज, कोई शब्द या कोई छवि हो सकती है। ध्यान गहरे मेडिटेशन की वो अवस्था है जहां व्यक्ति को अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अपने आसपास की स्थितियों का ध्यान रहता है और वो संपूर्ण स्थिरता की ओर बढ़ता रहता है। और आखिर में योग का अंतिम अंग होता है समाधि, या पूरी तरह जज्ब और स्थिर मस्तिष्क, जहां ध्यान लगाने वाला उसके ध्यान की वस्तु और आसपास की सभी चीजें एकाकार हो जाती हैं। समाधि से आगे योगी को कैवल्यम या संपूर्ण स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप पहले 5 अंगों का अभ्यास ध्यान से करें तो अंतिम 3 उसके परिणाम स्वरूप हासिल होते हैं, और इस अभ्यास के जरिए योगी अपने कोशों का प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संपूर्ण